Hello everyone, I hope you all are doing great and welcome to the Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala. And today we'll be discussing about another very important disease condition. Yes, our topics of today's discussion is benign prostate hyperplasia. So before we actually go into the detail of this BPH, let us quickly revise the anatomy related to the BPH. So what is exactly BPH is involving is the prostate gland, right? BPH में क्या involve हो रहा है? In BPH we are discussing about the prostate. Now let us discuss very interesting fact about prostate. So we all know we have two beautiful, very important part, the kidney. Yes, from the kidney we have the ureters, as you can see in this image, ureter hai, and then uske baad ureter will continue with the bladder. आपका bladder आ जाएगा, and bladder just below the bladder, this walnut shaped gland structure, this walnut shaped gland is called prostate, right? So prostate एक gland है. सबसे पहला very important information, it is a gland. Second important information, prostate is only present in the male, right? In male, it's not present in the female. ये कई बार बच्चों से वाइवा में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या फीमेल में भी प्रोस्टेट होता है? सिंपल आंसर इज नो. प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन द मेल, right? It is of walnut shape, and where it is located? It is located just below the bladder. ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके वाइवा में. So below the bladder है, walnut shape का होता है, walnut जितनी छोटी सी shape होती है, gland है only present in male, right? Clear? And उसके नीचे अब ये prostate जो है, if you can see, the prostate is encircling the urethra. urethra को encircle कर रहा है. Here, now let's back to the terminology benign prostate hyperplasia. अब in order to understand कि ये BPH में क्या हो रहा है, क्या disease condition है, we need to understand the word hyperplasia, right? हमें ये word समझना पड़ेगा, hyperplasia. So there are two relative terminology. One is hyperplasia, another one is hypertrophy. अब ये दोनों ही टर्म सिमिलर हैं बहुत, बट there is a difference in both the terminology, and you know, remembering the exact meaning of these terminology, it's quite difficult because दोनों ही टर्म इतनी closely similar है कि समझ नहीं आता कौन सा क्या होगा, कौन सा क्या होगा. So let me tell you कि इन दोनों का मतलब क्या है, and how I used to remember these terminology. मैं वो आपको ट्रिक बताऊंगी, right? So यहाँ पे hyperplasia and hypertrophy का मतलब क्या है? Hyperplasia simply means there is abnormal या फिर increase in the number of cell. Abnormal increase in the number of cell, right? Hypertrophy का मतलब है abnormally increase in the size of cell. This is what hypertrophy means. Hyperplasia, increase in the number of cell. Hypertrophy, increase in the size of cell. Now, the basic common trick which I used to remember both the terminology is that कि जब भी हमें trophy मिलती है, whenever a person is receiving a trophy, so it is basically a very proud moment for that particular person. जैसे अगर आपको trophy मिली अपने कॉलेज में, तो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, एंड इट शोज आपको बहुत वैल्यू फील होगी. आपको लगेगा मेरा साइज बहुत बढ़ गया है, अब मेरा जो है बहुत वो हो गया है, नाम हो गया है, वैल्यू बढ़ गई है, साइज बढ़ गया है, राइट? सो ट्रॉफी मीन्स साइज बढ़ाना है, होता है ना, थोड़ा सोसाइटी में कद बढ़ गया. तो इस तरीके से मैं याद रखूं. यू कैन ऑल्सो, इफ यू find this way easy to remember, then you can also use the same way. Otherwise, of course, there are multiple way to remember it. So hypertrophy, trophy मिली है, size बढ़ गया society में, that means there is abnormal increase in the size of the cell. Hyperplasia उसका opposite है, which is increase in the number of cell, right? So what exactly happening in benign prostate hyperplasia में हो क्या रहा है? ये जो आपका prostate है, right? ये जो prostate organ, yes, this is a very beautiful image. Let me maximize it. Yes. Now if you'll see here,
हाइपर बीपीएच में क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट का नंबर ऑफ सेल एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है. Now, what will happen? What will be the consequences of enlargement of the prostate? Let us understand this first, right? Then only we'll able to identify कि ये इतनी disease क्यों important है, जो BPH है. So BPH में क्या है, अब ये normal, जैसे ये bladder है, right? We all know bladder में urine होता है, right? अब ये bladder जैसे ही patient को urge होता है to pass the urine, so bladder से urine pass होता है through the urethra and drain out, right? From the urinary urethral meatus excrete out हो जाता है, eliminate हो जाता है urine, right, from the body. अब what exactly happening is, अगर हम prostate को देखें, क्योंकि prostate, because prostate आपका ये यूरेथ्रा के चारों तरफ है, तो जब ये इसका साइज बढ़ेगा, अब नॉर्मली ग्रोथ होगी इन द नंबर ऑफ सेल, अब नॉर्मल ग्रोथ होगी, तो ये क्या करेगा, यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देगा. भाई एक पाइप है, राइट, जस्ट एक सिंपल कॉमन एग्जांपल है, ये अगर एक पाइप है, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये है पाइप और यहाँ इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर है, अगर वो बड़ा हो जाएगा, साइज उसका, मतलब उसका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये पाइप को कंप्रेस कर देगा. नाउ पाइप का जो एरिया था, जो स्पेस था, वो पतला हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से नाउ देयर इज, जो नेक ऑफ ब्लैडर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लैडर आउटलेट. सो प्रोस्टेट ग्लैंड विल रिजल्ट इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट. से क्या हो रहा है, जो ब्लैडर का नेक है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंड इट कैन ऑल्सो, एंड इट रिजल्ट इनटू यूरेथ्रल, जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा, यू कैन से दैट नैरो. यहाँ पे देखो, कंपेयर करो यूरेथ्रा का जो पूरा वे है, यूरेथ्रा का एक जो पूरा रास्ता है, वो कितना वाइड है, बट हेयर बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट द यूरेथ्रा गेट नैरो, जो उसका वे है वो बहुत नैरो हो गया है. नाउ व्हाट विल हैपन, अब इस केस में क्या होगा, जो ब्लैडर में यूरिन जब कलेक्ट जो होता है, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रेन द यूरिन, राइट. यूरिन पूरा ब्लैडर को एम्प्टी करने में बहुत दिक्कत होगा, राइट. या तो बहुत धीरे धीरे पेशेंट यूरिन पास करेगा, बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली अर्ज होगा. फ्रीक्वेंटली अर्ज क्यों होगा, बिकॉज पेशेंट का ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है. इस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग. पेशेंट को क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग होगा. इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, क्योंकि पेशेंट आपका यूरिन पास नहीं कर रहा है, पास करने की कोशिश कर रहा है, बट वोंट बी एबल टू एलिमिनेट एक्सक्रीट इट. क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज द वे द पैसेज थ्रू विच द यूरिन हैज टू गेट पास्ड, वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, राइट. जिसकी वजह से आपका इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग होगा, है पेशेंट को बार बार अर्ज होगा, पेशेंट को यूरिन पास करने का, यूरिन पास नहीं होगा, डिफिकल्टी होगी, पेशेंट इवन स्ट्रेनिंग भी करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा अब्डोमिनल मसल पे कि पेशेंट यूरिन पास कर सके, राइट. ड्रिबलिंग प्रेजेंट होगा, ड्रिबलिंग मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक करता रहता है यूरिन, तो ये ड्रिबलिंग प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी है. एंड यू नो व्हाट, अगर हम, हमेशा बोला जाता है दैट इट इज इंपॉर्टेंट डू नॉट होल्ड द यूरिन, क्योंकि जब हम ब्लैडर को ठीक तरीके से, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, सो इट कैन रिजल्ट इनटू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर ब्लैडर ठीक तरीके से एम्प्टी नहीं होगा, तो उससे क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. इट कैन रिजल्ट इनटू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, right. So these are certain complication and the exact picture of BPH के BPH में हो क्या रहा है. So in short, in one way or in nutshell, we can say benign prostate hypertrophy में जो prostate gland है, hyperplasia में number of जो cell के size है वो बढ़ जाते हैं, cell growth भी होती है, right. So sometime it is benign prostate hypertrophy followed by benign prostate hyperplasia, जिसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर था, जिसका वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है विच इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का उसने रास्ता नैरो कर दिया, ब्लैडर की नेक को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया पार्शियली,
जिसकी वजह से यूरिन इज नॉट एबल टू पास फ्रॉम द ब्लैडर एंटर इनटू द यूरेथ्रा, राइट, कंप्लीटली, एंड इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग हो रहा है, राइट, दैट कैन रिजल्ट इनटू फर्दर कॉम्प्लिकेशन. नाउ another very important point which generally can be asked in your viva examination of medical surgical nursing is that जब भी प्रोस्टेट की बात करते हैं तो कभी कभी एग्जामिनर ये पूछते हैं कि अगर प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो रहा है, बीपीएच हो रहा है, और ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विच पार्ट ऑफ प्रोस्टेट इज अफेक्टिंग द मोस्ट? नाउ देर आर सर्टेन जोन. अब प्रोस्टेट को इफ यू सी दिस इमेज, अगर हम इस इमेज को देखें तो प्रोस्टेट जनरली आपका 4 जोन में डिवाइडेड है. हाउ मेनी जोन? 4 जोन. Prostate is divided into 4 zone. If you can see, transitional zone, anterior zone, peripheral zone and the central zone. So ये आपके प्रोस्टेट के ही हमने प्रोस्टेट को 4 जोन में डिवाइड कर रखा है, राइट. एंड द मोस्ट कॉमन जोन जहां पे बीपीएच सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, इट इज योर transitional zone. Now this is the question of competitive examination and your viva voice. कई बार जो है एग्जामिनर पूछ सकता है आपका, अगर आपके पेशेंट को डिजीज कंडीशन बीपीएच है, डायग्नोसिस बीपीएच है, तो उस केस में एग्जामिनर कैन आस्क यू दिस कि बीपीएच जो है प्रोस्टेट की सबसे कॉमनली किस जोन में होती है. सो योर आंसर विल बी ट्रांजिशनल जोन है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, जहां पे प्रोस्टेट एबनॉर्मली एनलार्जमेंट करता है. ठीक है, अब एनलार्जमेंट से क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये नैरो हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाएगा, एंड कंप्रेस होने की वजह से ब्लैडर पूरी तरीके से यूरिन एम्प्टी नहीं हो पाएगा, राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस एनलार्जमेंट. अगर हम बात करें बीपीएच की, सो बीपीएच इज बेसिकली वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ एजिंग. सो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है बीपीएच का इज बेसिकली द मेल जिनका एज जो है मोर देन 40 years है. This is one of the most commonest risk factor for the development of BPH. Now, what exactly happening? What is the cause behind this abnormal enlargement of the prostate gland? अगर इसके cause की बात करें, so exact reason behind it, it's not clear, but there are certain theory which support the abnormal enlargement of prostate. सबसे पहला ये बोला जाता है, जब सबसे पहला जो थ्योरी है वो है मेल एंड्रोजन हार्मोन. हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. मेल एंड्रोजन हार्मोन which is testosterone. So it is said to be when there is increased level of टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में मेल जो होते हैं, मेल में जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, उसमें होता क्या है, लेट मी राइट डाउन ऑन द अनदर स्लाइड. यस, सो जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन, उससे आपका होता क्या है, हमारा जो बॉडी में प्रोस्टेट है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को prostate will convert the testosterone into dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone में convert कर लेता है. When there is increased level of testosterone in the body, so what prostate will do? Prostate क्या करेगा? प्रोस्टेट इसको टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर लेगा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में. नाउ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दे बेसिकली कंबाइन विथ 5 अल्फा रिडक्टेस. 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ कंबाइन होके दे विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ प्रोस्टेट. राइट, सो थ्योरी नंबर 1 इज व्हेन देयर इज इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोस्टेट क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज आल्सो नोन एज DHT, राइट. उसमें कन्वर्ट करता है, वो 5 अल्फा रिडक्टेस से कंबाइन करके नंबर ऑफ सेल का स्पीड अप कर देता है, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. अनदर इंपॉर्टेंट एक और जो इंपॉर्टेंट आपका
थ्योरी है वो ये है, एज द पर्सन एजेस, जैसे जैसे वो अपनी उम्र बढ़ती है, तो उम्र के साथ साथ विद द इंक्रीज एज, राइट, विद इंक्रीज एज क्या होता है, द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन decreases, but the level of estrogen वो इंक्रीज होता है। एंड अल्टीमेटली जो हमारे बॉडी में, जो मेल की बॉडी में बेसिकली जो ईस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स हमारा लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज हायर। यस, वी डू हैव ईस्ट्रोजन इन द मेल एज वेल, राइट। सो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है, दैट विल इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है फॉर द abnormal enlargement of prostate gland. So there are two important theories जो कि सजेस्ट करती है कि ये prostate enlargement क्यों हो रहा है। Other than that, if your patient is having kidney injury, already जो है patient को oliguria anuria हो रहा है, and if it is in a chronic stage, that later on अगर patient आपका एक और precipitating factor है which is old age, patient is at risk for the development of BPH, right? So now let's talk about the clinical manifestation. अगर हम clinical manifestation की बात करें, so number one is urinary frequency. Like I said कि because patient is not able to completely empty his bladder, पेशेंट अपने ब्लैडर को खाली नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, पूरा यूरिन ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिमेन बेसिकली, पेशेंट को बार बार अर्ज होगा टू यूरिनेट, राइट। पेशेंट की फ्रीक्वेंसी टू यूरिनेट बढ़ जाएगी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, एंड मेनी टाइम पेशेंट एक्सपीरियंस नॉक्टूरिया, विच इज रात में बहुत बार यूरिन जो है यूरिनेट के लिए, एलिमिनेट के लिए बहुत बार पेशेंट होता है। सो नॉक्टूरिया एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट, राइट। अदर देन दैट वी विल बी हैविंग, यस, यूरिनरी अर्जेंसी होगी एंड नॉक्टूरिया प्रेजेंट होगा पेशेंट को, वीक यूरिनरी सिस्टम होगा, ड्रिबल करेगा, इवन व्हेनेवर पेशेंट स्नीज, स्पीक, कफ, लाफ, तो वो जो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, ये दे विल आल्सो सपोर्ट कि ड्रिबल यूरिन आपके पेशेंट का लीक हो जाएगा, राइट। दैट समवेयर रिजल्टेड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है आगे जाके। एंड स्ट्रेनिंग, बिकॉज पेशेंट अपना एफर्ट लगाएगा कि वो पूरा, वो पेशेंट को फील होगा दैट ब्लैडर इज नॉट एबल टू, मतलब उसका ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं है, राइट। तो इसके लिए पेशेंट क्या करेगा, स्ट्रेनिंग करेगा, प्रेशर लगाएगा, जोर लगाएगा, बट स्टिल वो ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड दिस स्ट्रेनिंग कैन कॉज पेन। यस, ये स्ट्रेनिंग क्या कर सकती है, इट कैन रिजल्ट इनटू एक्यूट पेन। सो जब हम इसको पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, यू हैव टू असेस फॉर द पेन एज वेल। ये याद रखिए, जब भी आप नर्सिंग असेसमेंट करोगे, देन assess the patient for pain, पेन के लिए भी असेस करना है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज एसोसिएटेड विद बीपीएच इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, राइट। अगर हम बात करें असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या कर सकते हैं, वी हैव मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर बीपीएच इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यस, जिसमें the physician can palpate the abnormal enlargement of the prostate. ये this is one of the very beautiful image जहाँ पे clearly we can identify डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज दिस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। Why it is calling digital? Digital is not something that we are using camera or cystoscope. It is simply we are using the digit, our fingers, right? So with the help of digit, one finger, the physician can palpate the abnormal enlarged prostate and confirm the diagnosis, right? सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस, यस, यूरिन एनालिसिस से क्या होगा, यूटीआई हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, जो यूरिन सैंपल लेंगे उसका कलर क्लाउडी होगा, अपीयरेंस जो है उसकी जैसे, बिकॉज पेशेंट को हेमेचूरिया भी हो सकता है, व्हेन पेशेंट विल बी स्ट्रेनिंग, रेड ब्लड सेल पास थ्रू कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का कलर थोड़ा सा जो है आपका क्लाउडी के साथ ब्लडी स्ट्रेन होगा, या फिर बहुत ही ज्यादा पेल येलो होगा। पीएच हमेशा 7 रहेगा, और मोड जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन,
right? Then we can also go for prostate specific antigen, blood sampling कर सकते हैं, जिसमें generally blood जो आपका ये BPH होता है, BPH के अंदर prostate specific antigen का level high होता है. BPH, you can say in BPH there is increase in prostate specific antigen level. Then यूरिन कल्चर कर सकते हैं, अगेन जैसे कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो दीज आर कॉमन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल जो हम बीपीएच को रूल आउट करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट. अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यहाँ पे मैनेजमेंट होगी वो है आपकी, पेशेंट को हमें इमीडिएटली पेशेंट के ब्लैडर को एम्प्टी करना है. सो ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए व्हाट विल बी द इंटरवेंशन, इसके लिए क्या इंटरवेंशन होगी, दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन. इट इज मस्ट, राइट. नंबर वन, हमें क्या करना है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना है. बट whenever we are doing this procedure, we have to make sure to prevent the subsequent or associated complication of COTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक में कैथेटर इंसर्ट करना है, कैथेटर यूरिनरी कैथेटर प्रोवाइड करनी है ऑन एवरी शिफ्ट बेसिस, ताकि पेशेंट को कॉटी ना हो, राइट. अनदर मेडिकल मैनेजमेंट में इसके अलावा और क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं. नाउ अनदर इंटरवेंशन कैन बी, वी कैन यूज सिस्टोटोमी, जिसमें इंसिजन कैन बी मेड इनटू द ब्लैडर. ब्लैडर, अगर हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते, इतना नैरो वे है, स्टिंक्चर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अदर ऑप्शन यूज करना पड़े, देन सिस्टोस्टोमी इज द ऑप्शन, जिसमें हम ब्लैडर में इंसिजन लगाएंगे, इंसिजन इनटू द ब्लैडर इन ऑर्डर टू मेक अ यूरिनरी ड्रेनेज, राइट. यूरिनरी ड्रेन करना है तो उसके लिए आपको फिर कुछ ना कुछ अदर ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा. तो सिस्टोटोमी कैन बी परफॉर्म. Now let's talk about the pharmacological management. फार्माकोलॉजिकल अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे हमने पढ़ा कि बीपीएच हार्मोनल चेंजेस से होता है, तो और जिसमें सबसे कॉमन था एंड्रोजन, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में. सो वी कैन गिव एंटी एंड्रोजन एजेंट टू द पेशेंट, जो कि कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो ये कन्वर्जन हो रहा था टेस्टोस्टेरोन का, yes, conversion of testosterone to dihydrotestosterone वो stop कर देगा. And we can also give alpha adrenergic blocker to the patient. Patient को आप alpha adrenergic blocker दे सकते हो, and what they will do, they will basically relax the smooth muscles. ये क्या करेंगे, ये relax करेंगे स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, जो आपका ब्लैडर का नेक वाला पार्ट है, राइट. बिकॉज ब्लैडर की नेक पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है फ्रॉम द प्रोस्टेट. सो दे विल रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर नेक एंड द यूरेथ्रा, दैट विल अलाउ द यूरिन टू ड्रेन फ्रॉम द यूरेथ्रा, right, ताकि यूरिन ड्रेन हो सके. So these are the two common pharmacological management that we can use for BPH. Another, after that, the core management part is the surgical management. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट सर्जिकल इंटरवेंशन है वो क्या है, ईदर मोस्ट कॉमनली आपका ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है वाइवा में. सो मेक श्योर, अगर आपका डायग्नोसिस प्रैक्टिकल में आपके पेशेंट का डायग्नोसिस बीपीएच है, देन बी प्रिपेयर्ड, TURP का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा. सो TURP इज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. इसमें ये ओपन सर्जरी नहीं है. Now I hope you all aware about, we have two type of surgical procedure, open surgical procedure and laparoscopic surgical procedure. Open surgical procedure, simply incision दिया particular part of a body and then हमने उसको wide incision देके पूरा वहां से जो भी सर्जरी करनी है वो वहां पे कंडक्ट करी. Laparoscopic surgery on the other hand, इसे हम बोलते हैं minimally invasive surgical procedure. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो एक और दूसरा नाम है वो है मिनिमली सर्जिकली इनवेसिव प्रोसीजर. And I hope you all are aware about invasive and non-invasive. Invasive, which is something we are doing inside the body, percutaneously.
राइट, अंदर जो कर रहे हैं हम प्रोसीजर। सो मिनिमली सर्जिकल इन्वेजिव प्रोसीजर इसलिए बोला गया है क्योंकि लेप्रोस्कोपिक में आप एक लंबा इंसिजन नहीं देते हैं, आप छोटा सा एक 11 नंबर का ब्लेड लेते हैं सर्जिकल, आप एक छोटा एक माइन्यूट सा एक इंसिजन देते हैं, एंड थ्रू दैट इंसिजन ईदर यू विल इंसर्ट द ट्रोकार, एंड उस ट्रोकार के अंदर आप कैमरा डालते हो, एंडोस्कोप डालते हो, एंड देन यू विल परफॉर्म द सर्जरी। अब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में क्या होता है, व्हाट वी आर डूइंग इन TURP, हम सिस्टोस्कोप का यूज करते हैं। सो वी डोंट हैव टू गिव एनी इंसिजन टू द पेशेंट, वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द सिस्टोस्कोप, इंसर्ट करना है, एंड सिस्टोस्कोप इंसर्ट करने के साथ उसके अंदर हम क्या होता है, आपका एक कॉटरी पेंसिल भी होता है ना, कटिंग के लिए। सो जहां जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल आउटर ग्रोथ है प्रोस्टेट की, उसको रिसेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में, एंड रिसेक्ट करने के बाद सारा सक्शन आउट कर लेते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन जो TURP पेशेंट होते हैं, जब वो वापस से पोस्ट ऑपरेटिव में जाते हैं तो उनको 3-वे यूरिनरी कैथेटर लगा होता है, 3-वे कैथेटर होता है, जिसमें एक कैथेटर से आपका एक जो पोर्ट है, जैसे 3-वे है, यस, ये आपका फोलीज कैथेटर हो गया 3-वे। एक ड्रेन एक वाले पार्ट से ल्यूमन से आपका यूरोबैग कनेक्ट है, एक ल्यूमन से आपने बलून को इन्फ्लेट कर रखा है, दूसरा जो थर्ड वाला ल्यूमन होगा उससे हम क्या कनेक्ट करते हैं, इरिगेशन फ्लूइड कनेक्ट करते हैं। जनरली जो हम इरिगेशन फ्लूइड यूज करते हैं TURP वाली पेशेंट के लिए, वो करते हैं ग्लिसरॉल, राइट। सो 1000 ml का ग्लिसरॉल की बॉटल आपने कनेक्ट कर रखी है, और वो उसका IV सेट कहाँ किससे कनेक्टेड है, आपके पेशेंट के फोलीज कैथेटर के थर्ड ल्यूमन से, जहां से कंटिन्यूअसली इरिगेशन चल रहा है, राइट। इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव में जब इरिगेशन जब TURP वाला पेशेंट आता है तो उसके यूरो बैग में जो यूरिन होता है वो थोड़ा ब्लडी होता है, रेड, बहुत मतलब थोड़ा रेड कलर का होता है, राइट, ब्लडी टाइप होता है। तो इसीलिए क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है, तो 6 आवर तक वो उस तरीके का यूरिन पेशेंट का ड्रेन होना, इट्स नॉर्मल कंडीशन, राइट। वो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। सो TURP इज वन ऑफ द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर BPH, जिसमें हम रिसेक्ट करते हैं प्रोस्टेट को। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ, इट इज नॉट एन ओपन सर्जरी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम TURP नहीं करते, सो वी कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपन प्रोस्टेक्टमी, जो कि ओपन सर्जरी है, ओपन इंसिजन देके ईदर फ्रॉम द सुप्राप्यूबिक, राइट, और थ्रू पेरिनियल रीजन के थ्रू आप इंसिजन देके जो सर्जन होते हैं वो प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। Other than that, we have one more surgical option, which is transurethral microwave heat therapy, जिसमें हम low frequency heat radiation के थ्रू जो है, जो जितने भी आपके प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट सेल है, जो एनलार्ज सेल है, उनको हम जो है रिसेक्ट करते हैं, उन्हें वहां पे हीट ट्रीटमेंट के थ्रू वहां से रिमूव करते हैं, राइट। सो दीज आर द 3 कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर for BPH. Now let's talk about the nursing diagnosis. अगर nursing की diagnosis की बात करें, so overall there are 3 most common nursing diagnoses which we can include in the nursing care plan of BPH. Number 1, urinary retention. Yes, क्यों हो रहा है ये retention, क्यों हो रहा है, why urine is not able to drain out or get eliminated from the body is because of the obstruction in the bladder, neck and urethra, राइट। ब्लैडर की नेक, बिकॉज ब्लैडर आपका, अगर ये ब्लैडर है तो ब्लैडर की नेक पे, यहाँ पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, ब्लैडर की नेक पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से यूरिन क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। पेशेंट को एक्यूट पेन होगा बिकॉज ऑफ ब्लैडर डिस्टेंशन, एंड स्टेनिंग जो कि पेशेंट करेगा उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड देयर विल बी एंजाइटी फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे, right? So these are the core common nursing diagnosis for BPH. Now let us see कि nursing intervention क्या होगी। अब जितनी भी nursing intervention होगी उसमें हमारा assessment and intervention part both play a very important role. We need to assess the patient very carefully. Patient को first हमें observe करना है, उसके urine के stream को, उसके मतलब उसका जो वो dribble कर रहा है, क्या वो force लगा रहा है, नहीं लगा रहा, because it is important। अगर patient बहुत ज्यादा force लगा रहा होगा, patient को कहीं ना कहीं पेन होगा आगे जाके। सो वी नीड टू एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट के बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करना है, राइट। व्हेनेवर पेशेंट इज पासिंग, यहाँ पे इनटेक एंड आउटपुट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अदरवाइज पेशेंट कैन एक्सपीरियंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, राइट।
पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से यू हैव टू मॉनिटर द स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट। अगर पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है, विच इज मैंडेटरी, कैथेटर लगा होगा तो पेशेंट को कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट का कैथेटर चेक करते रहना है फॉर एवरी 15 मिनट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज कैथेटर इज द ओनली वे थ्रू विच नाउ द पेशेंट इज एबल टू ड्रेन द यूरिन। अब अगर कैथेटर कहीं, पेशेंट का जो कैथेटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी पोजीशन बदलता है, और अगर आपने कैथेटर को, पोलिस कैथेटर को पेशेंट के थाई पे स्टिक नहीं किया तो कैथेटर जो ट्यूबिंग है वो दब जाएगी पेशेंट के बॉडी से, किसी बॉडी थाई से या पेशेंट के बॉडी पार्ट से, या फिर कैथेटर कहीं मुड़ गया, किंक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको जो है चेक करनी है फ्रीक्वेंटली, ताकि फ्लो ऑफ यूरिन बना रहे, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। Then we can also encourage more oral fluid to the patient. Now the reason behind increasing the oral fluid is in order to avoid the urinary tract infection, right? So yes, whenever जब भी हम patient का fluid बढ़ाते हैं orally, we have to make sure कि patient का within cardiac tolerance ना हो, tolerance के अंदर हो, circulatory overload नहीं होना चाहिए। फ्लूइड बढ़ाने का रीजन यही है कि जितना ज्यादा पेशेंट पानी पिएगा उतना ज्यादा उसे अर्ज होगी, उतना ज्यादा उसका ब्लैडर जो है फ्लश आउट होगा, राइट? एंड देयर विल बी लेस रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूटीआई। क्लियर? कैथेटर एंड पेरिनियल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे अवॉइड करना है। सिंपली यू कैन टेक नॉर्मल सलाइन एंड प्रोवाइड द कैथेटर केयर। Then we can also watch the sign for post obstructive diuresis। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट हो गया है, पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हुआ उसको इतना ज्यादा डायूरेसिस हो गया दैट पेशेंट गो इनटू हाइपरटेंशन। This is also very important to monitor, right? And along with that, because it is related to with the it is related with the fluid and electrolyte imbalance, so patient का जो central nervous system assessment है, the mental status, राइट, कॉन्शियस लेवल, पेशेंट का वेट, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है। देन whenever you will visit to the patient bedside, it is important to percuss and palpate the suprapubic area। why we are doing so? because कई बार क्या होता है कि जब हम पेशेंट, बिकॉज माइट बी पॉसिबल आपका अनकॉन्शियस पेशेंट हो, अब अनकॉन्शियस पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा कि मुझे अर्ज हो रहा है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पाल्पेट द सुप्राप्यूबिक एरिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड है या नहीं है, राइट? तो ये भी एक कॉमन जो है इंटरवेंशन है विच वी हैव टू इंक्लूड फॉर अ पेशेंट हु इज एडमिटेड फॉर बीपीएच, राइट? सो फॉरमोस्ट हमें पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन के लिए देखना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पेन, अगर हम एक्यूट पेन की बात करें, देन व्हाट ऑल इंटरवेंशन वी कैन प्रोवाइड। सो पेन में यस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पेन मेडिकेशन दे सकते हैं, टू एनाल्जेसिक दे सकते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पेन। यू हैव टू असेस द पेन लेवल बाय यूजिंग द असेसमेंट स्केल, राइट? डाइवर्शनल थेरेपी कर सकते हैं, यू हैव टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन कि आपको स्ट्रेनिंग नहीं करनी है बहुत ज्यादा जिससे आपको पेन हो, तो ये कर सकते हैं। एंड एंजाइटी को रिमूव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन हीज प्लान ऑफ केयर। whatever you are performing, we have to thoroughly explain everything to the patient, involve the patient, so patient को क्या होगा, उससे एंजाइटी कम होगी कि अच्छा अब मुझे ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, राइट? एंड इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर एज वेल, ताकि पेशेंट जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। जितना हो सके उसको हमें एनवायरमेंट ऐसा देना है, काम एंड सूदिंग एनवायरमेंट देना है। Be very nice to the patient and use therapeutic communication technique whenever you are dealing with the patient, right? So this is all about in brief about the BPH. I hope this lecture is clear to all. It is an important topic for your exam point of view, especially practical में अगर आपके पास आ गया तो ये important है। hyperplasia, hypertrophy, TURP की full form, prostate, मेल में होता है, फीमेल में होता है। These are some of the basic questions which generally the examiner asks to the students during their viva. So that's all from my side, and we'll see you all with another interesting topic. Till then, stay happy, stay healthy.